Welcome to Future Aspirants. I'm here with the video about central nervous system, and in this video I am going to explain you about the central nervous system of human beings. और ये टॉपिक मैंने सेलेक्ट किया है फ्रॉम इंटर पार्ट 2 बुक बायोलॉजी बुक and its name, the chapter name is coordination and control. So let us start with the topic of central nervous system. So when we talk about central nervous system, the central nervous system consists of mainly two parts, that is brain and spinal cord. And because these both of these parts are very delicate parts of our body, और ये हमारे brain जो है हमारा center area है, means it is controlling all of our body, the brain and spinal cord. That is why their protection is the most important function. सो दैट इज़ वाई इनको प्रोटेक्ट करने के लिए 3 डिफरेंट वेज़ का इस्तेमाल किया गया है हमारी बॉडी में. हमारी बॉडी 3 डिफरेंट वेज से, 3 डिफरेंट मेथड से इन दोनों सेंसिटिव ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करती है, इंजरी वगैरह से बचाती है. सो द फर्स्ट थिंग इज़ क्रेनियम. क्रेनियम मीन्स इट इज़ अ पार्ट ऑफ स्कल, यानी हमारा जो स्केलेटन सिस्टम है वो उसमें जो स्कल है उसका वो पोर्शन जो कि ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है, उसको कवर करता है, दैट इज़ द स्कल. इट प्रोटेक्ट आवर ब्रेन एंड द न्यूरल आर्केज ऑफ वर्टिब्रे. इट प्रोटेक्ट्स द ब्रेन, ब्रेन को इंजरी से बचाता है, किसी भी हार्ड चीज़ से टकराने से बचाता है. यू कैन सी हियर इन द बैकग्राउंड पिक्चर द डिफरेंट व्यूज़ of cranium, the skull bone. The next, when we talk about the spinal cord को skull तो नहीं prevent करता, but the vertebral column, they protect the spinal cord. Vertebral column means the backbone, जिसे उर्दू में रीढ़ की हड्डी भी कहा जाता है. Then that was the first protection जिसमें बोन्स का यूज़ होता है, स्केलेटल सिस्टम का यूज़ हो रहा है टू प्रोटेक्ट द ब्रेन एंड द स्पाइनल कॉर्ड. द सेकेंड प्रोटेक्शन इज़ मैनिंग्स. Mannings are जो brain and spinal cord both are protected by triple layers, by 3 different layers of Mannings, as you can see over here. After skull comes these 3 different layers of Mannings, and these Mannings, they not only protect the brain but they also protect and cover the spinal cord. And the third layer, the third protective layer around the brain and the spinal cord is the cerebrospinal fluid. When we talk about cerebrospinal fluid, it is similar in composition to blood plasma. जैसे कि हमारी बॉडी में ब्लड है, उसका जो प्लाज्मा वाला पोर्शन है, cerebrospinal fluid की composition भी उस प्लाज्मा के जैसे ही है. And this cerebrospinal fluid, it directly bathes the neurons of brain and spinal cord. अगर हम ब्लड के प्लाज्मा की बात करें तो ब्लड in our body, the blood circulates in the circulatory system, means blood vessels, capillaries and all. They cannot directly go and bath the cells. Here is the difference between the cerebrospinal fluid and the blood plasma, that cerebrospinal fluid, it directly bathes, means it covers, it reaches the portions of the brain and spinal cord, it reaches the neurons of the brain and spinal cord. एंड cerebrospinal fluid का फ़ायदा क्या है कि इट कुशन्स, मीन इट प्रोटेक्ट्स आवर ब्रेन एंड आवर स्पाइनल कॉर्ड अगेंस्ट द बम्प्स एंड जॉल्ट्स, यानी कोई झटके वगैरह लगें, कोई धक्के लगें, तो उससे अगर ब्रेन में ये तीनों लेयर्स ना होती कवरिंग की तो काफ़ी नुकसान हो सकता है. सो दैट इज़ वाई कुदरत ने 3 लेयर्स, 3 सिस्टम बनाए हैं कि इन डेलिकेट ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट किया जाए किसी भी इंजरी के ख़िलाफ़. As you can see over here, this blue color lining, it shows the cerebrospinal fluid, and these arrows, they tell that till where the cerebrospinal fluid reaches in our skull and in our brain. You can see that it is reaching directly to the brain. It is covering all the sides of the brain, even inside the brain, around the cerebrum and स्पाइनल कॉर्ड. ये cerebrospinal fluid प्रेजेंट है जो कि कुशन करता है, मीन्स प्रोटेक्शन देगा अगेंस्ट ऑल द काइंड्स ऑफ बम्प्स एंड जॉल्ट्स टू आवर ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड. So when we talk our brain and spinal cord, from inside when we look, both of them are hollow, empty हैं दोनों, अंदर कोई भी mass present नहीं है. And the spinal cord, when we talk about it, it has central canal and brain has many cavities जिन्हें हम ventricles का नाम भी देते हैं. And this hollow canal, this central canal, these hollow portions of the brain and spinal cord, they are filled up with the cerebrospinal fluid जो कि protection दे रहा है, cushion up कर रहा है इन organs को.
And this cerebrospinal fluid, it is also present between the Mannings. There are 3 different layers of Mannings, I told you. तो उन layers के बीच में भी cerebrospinal fluid present होता है. So it is a very important fluid that is present around the brain and around the spinal cord to protect them. As you can see over here, there are empty ventricles, means inside the when we look inside the brain, तो वहाँ पे empty hollow spaces हैं जिन्हें हम ventricles का नाम देते हैं. And when we talk about the spinal cord, ये भी empty है, and there is a central canal of spinal cord that is sending and receiving messages, that is controlling our body. So now when we talk about brain can be divided into 3 different parts: forebrain, midbrain and hindbrain. You can look over here in the picture background. The forebrain, it is the maximum area of our brain. Midbrain, it is in the reduced form. This green color shows midbrain, and hindbrain is shown by this purple color. And hindbrain directly continues with the spinal cord. So now let us start with the forebrain. Forebrain is further divided into 3 different functional parts: the thalamus, the limbic system and the cerebrum. When we talk about forebrain, it is divided into 3 different parts. इस picture में, in the middle picture, forebrain is shown with this purple color. And let us study in detail about the different structures and functions of the forebrain. So starting with the thalamus, that is the first portion of the forebrain. It carries the sensory information to limbic system and cerebrum. Forebrain के बाकी के दोनों हिस्सों तक ये sensory information को पहुंचाता है. Means there are 3 different portions of forebrain: the limbic system, the cerebrum and the thalamus. So when the thalamus जो है वो limbic system और cerebrum तक sensory information, sensory यानी जो हम sense organs like eyes, nose, ears, skin, टंग, इनसे जो भी इंफॉर्मेशन हासिल करते हैं अपने इन्वायरमेंट के बारे में, सो इट फर्स्ट गोज़ टू थैलमस एंड थैलमस देन कैरीज इट टू द लिम्बिक सिस्टम एंड सेरेब्रम अकॉर्डिंग टू देयर रोल. उनके डिफरेंट रोल्स हैं, तो जिस तरह का रोल होगा उस हिसाब से वो इन्फॉर्मेशन कैरी करके लेके जाएगा. सो इन्फॉर्मेशन की अगर हम लोग जो बात करते हैं, it is in the form of sensory input from auditory and visual pathways. Auditory means hearing and visual means seeing. यानी eyes और ears के ज़रिए जो sensory information आती है वो ये लेके जाएगा. उसके अलावा हमारी स्किन से जो information आती है, like टच करने से कोई चीज़ हॉट है, कोई चीज़ कोल्ड है, कुछ रफ है, कुछ स्मूथ है, जब हम टच करके किसी चीज़ का अंदाज़ा लगाते हैं, सो इट इज़ ऑल्सो कैरिड टू द थैलमस. And from within our body also, if any information is sent to the brain, it will go to the thalamus, and then thalamus will take it to the different parts of the brain. You can see over here in this portion, this green color is the thalamus out of all the brain. I'm going to show you highlighted portions of the different parts of the brain that we are discussing. So this part is thalamus, that is present in the center of the brain. The next one is the limbic system. And limbic system, when we talk about it, it is present in located in arc between thalamus and cerebellum. Thalamus और cerebellum के दरमियान में ये arc की form में present होता है. And when we talk about limbic system, it works to produce our most basic and primitive emotions, drives and behaviors. ये हमारे मुख्तलिफ़ किस्म के emotions, हमारे behaviors को control करता है, जिसमें मुख्तलिफ़ किस्म के behavior आ सकते हैं. So now you can see this limbic system. This red color highlighted portion is the limbic system of our brain. That is the part of the forebrain. सो व्हेन वी टॉक अबाउट द फीलिंग्स, किस तरह के फीलिंग्स, किस तरह के बिहेवियर्स, किस तरह के ड्राइव्स जो कि लिम्बिक सिस्टम कंट्रोल करता है उनको एक्टिवेट करेगा या फिर उनको दोबारा इनएक्टिव फॉर्म में लेके जाएगा. दे आर फियर, रेज, ट्रैंक्विलिटी, hunger, thirst, pleasure and sexual responses. So these are all the responses that are being controlled by the limbic system of our forebrain. And this limbic system, it is also very important because it helps in the formation of memories. So it creates the means it stores the memories. Whatever is happening, it will store them and they can be regained, means they can be remembered again in the future. You can see over here also the limbic system. This is shown over here in the green color. And thalamus, I have already told you, this middle portion of green color. Then all the other portions are limbic system. ये जो आगे further है
दी गई है इनके डिफरेंट लेबल्स. दीज आर द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द लिम्बिक सिस्टम लाइक hypothalamus, amygdala and hippocampus. We are going to study them in the next few slides. So limbic system is further divided into three different portions. Those are hypothalamus, amygdala and hippocampus, as well as some of the nearby portions of the cerebrum, nearby regions of the cerebrum. They also come under the limbic system. They also are controlled by the limbic system. So you can see over here the limbic system. Hippocampus, that is right above the this label is given right above. Then hypothalamus and amygdala, that are given in the left bottom side. These are the portions of the लिम्बिक सिस्टम. इन तीनों को मिला के लिम्बिक सिस्टम पूरा बनता है और ये लिम्बिक सिस्टम के आगे फर्दर सब डिवीजन्स हैं. सो नाउ लेट अस टॉक अबाउट ईच ऑफ देम टर्न बाय टर्न. सो व्हेन वी टॉक अबाउट हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस हमारे ब्रेन का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है, बिकॉज नॉट ओनली इट हेल्प्स इन न्यूरल कनेक्शंस, बट इट ऑल्सो हेल्प्स इन द हार्मोन प्रोडक्शन. मीन्स इट इज़ प्लेइंग इन टू डिफरेंट रोल्स. That is, one is the chemical coordination and second one is nervous coordination. Chemical coordination हम next वीडियो में, किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे. तो केमिकल कोऑर्डिनेशन है जिसमें मुख्तलिफ़ किस्म के हार्मोन्स के ज़रिए हमारी बॉडी कम्युनिकेट करती है. हमारे बॉडी के मुख्तलिफ़ पार्ट्स या हमारी बॉडी का ब्रेन जो है मुख्तलिफ़ ऑर्गन के साथ हार्मोन्स रिलीज़ करके कम्युनिकेट करता है. द सेकेंड मेथड इज़ बाय नर्वस सिस्टम. दैट इज़ अ मच फास्टर वे. तो हम नर्वस सिस्टम को इस वक्त डिस्कस कर रहे हैं. द नर्वस सिस्टम, इन नर्वस सिस्टम आवर ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, इट कम्युनिकेट्स विद आवर बॉडी विद इन मिनट्स, जबकि हार्मोन सिस्टम में इट टेक्स अ लिटिल बिट लॉन्गर. सो हाइपोथैलेमस ब्रेन का वो पार्ट है जो ना सिर्फ हार्मोन प्रोडक्शन, यानी कि वो ना सिर्फ केमिकल कोऑर्डिनेशन, बल्कि वो न्यूरल कोऑर्डिनेशन में भी, न्यूरल कनेक्शंस में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. एंड इट एक्ट्स as a major coordinating center. It coordinates our whole body parts with each other. It controls different things on our body, like it controls our body temperature. Body temperature आप याद रखें कि हमारे लिए मेंटेन करना हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. It should not get too hot or too cold, otherwise our enzymes will stop to function. So that is why it is also an important function of the hypothalamus कि वो बॉडी टेम्परेचर को एक रेंज में मेंटेन करके रखेगा. और अगर किसी वजह से बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज़ या डिक्रीज़ हो रहा है तो हाइपोथैलेमस एक्टिव हो जाएगा और किसी बॉडी को एक्टिव करके टेम्परेचर को दोबारा रेंज में लेके आएगा. फॉर एग्जांपल, अगर टेम्परेचर हाई हो रहा है तो थ्रू मोर एंड मोर स्वेटिंग बॉडी टेम्परेचर कंट्रोल में करेगा. अगर सर्दियों में जिस तरह बॉडी टेम्परेचर लो हो रहा है बिकॉज ऑफ द सराउंडिंग एनवायरनमेंट, तो इट विल एक्टिवेट द शिवरिंग ऑफ आवर मसल्स. कांपने से उससे हमारे मसल्स में हीट प्रोड्यूस होती है और हाइपोथैलेमस इस तरह से हमारे मसल्स को एक्टिवेट करके हमारे बॉडी को दोबारा से नॉर्मल टेम्परेचर रेंज में ले आएगा. सिमिलरली, अदर देन द बॉडी टेम्परेचर, हंगर, मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड वाटर बैलेंस एंड स्लीप वेक साइकिल, यानी हमारे सोने और जागने की रूटीन, ये हर चीज़, यानी कि आप यहाँ पे देख रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट ये सारी साइकिल्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बैलेंसेस हैं जो कि हाइपोथैलेमस प्ले करता है रोल इनको कंट्रोल करने में, इनको प्रॉपर फॉर्म में चलाने में. So this is the tiny portion of hypothalamus that is present in our brain. Although it is very, very tiny in looking, but it plays an important role in controlling our body and in maintaining the different systems of our body. You can see over here also, in the whole brain, this is a tiny structure that is controlling whole of our body और मुख्तलिफ किस्म के systems को चलाता है. The next one is amygdala. Amygdala, it consists of cluster of neurons and it produces different sensations like sensation of pleasure, sensation of punishment or sexual arousal when stimulated. So it is also involved in the feeling of fear and rage. यानी गुस्से की हालत में जो हम आते हैं, हमारा जो behavior होता है, that is also controlled by the amygdala. It is also an important function of our brain. So you can see these yellow portions, these are the amygdala. And they are present in the limbic system. They are the part of the limbic system. You can see over here also this pink color tiny portion of the brain that is called as the amygdala. The next one is hippocampus.
Hippocampus also plays an important role in the formation of long-term memory. Long-term memory means something that you have learned years before, और आज भी अगर आप उनको रिमाइंड करें, आप उनको दोबारा से याद करने की कोशिश करें तो आपको याद आ जाती हैं, वो चीज़ें याद रह जाती हैं जो काफ़ी टाइम तक, तो उनको हम लॉन्ग टर्म मेमोरी का नाम देते हैं। और हिप्पोकैम्पस जो है लॉन्ग टर्म मेमोरी को फॉर्म करने में, उसको क्रिएट करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एंड हिप्पोकैम्पस इज़ ऑल्सो रिक्वायर्ड फॉर लर्निंग। लर्निंग वही है, आप कोई चीज़ याद कर रहे हैं, प्रिपेयर कर रहे हैं और बाद में आप दोबारा उसको याद कर सकें, मीन्स दोबारा आप सोच सकें उस चीज़ के बारे में, तो हिप्पोकैम्पस यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। So this part of the brain that is shown over here, that is the hippocampus, and it is also belongs to the limbic system. You can see over here also the hippocampus that is highlighted over here in the picture. That is this portion of brain is called as the hippocampus. Next one is cerebrum. This is the third portion of the forebrain and it is the largest portion of our whole brain. जितना भी brain है, चाहे जितने हिस्सों में divide है, उनमें से जो सबसे largest portion है, it belongs to the cerebrum. And cerebrum, it is divided into two halves and those halves are called as cerebral hemispheres. Right portion में जो half है उसे right cerebral hemisphere और left portion में हमारी body के जो half है, that is called as the left cerebral hemisphere. And these halves they communicate with each other, means they are not separate portions of our body. अगर हम cerebrum को two different halves में convert कर रहे हैं, divide कर रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि they are the two separate portions of our body. They are connected with each other. So this is a structure of cerebrum. You can see this blue color. This is the whole structure of cerebrum, means brain का major जो हिस्सा है, that is composed of cerebrum. So you can see over here in the right side of the picture, in the anterior view, there are two halves, left hemisphere and right hemisphere, and they are connected with each other with the structure called as corpus callosum, that is shown in the lateral view. So let us study about it. So our brain, the two portions of our hemispheres, they are connected with each other by this structure called as corpus callosum, and in this structure large band of axons are there. Axons are the portions of the nerves of the nerve cells, neurons. So the two halves, they communicate each other, they are joined with each other with the structure called as corpus callosum. And in this structure you can see in the background this green highlighted area. This structure, it connects the two hemispheres of our brain, and within this structure only tens of billions of neurons are packed in this part, because it helps in the communication between the two parts of the brain, the two hemisphere of the brain. That is why for communication tens of billions of, means so large number of neurons are present in this portion only. The outer region of our brain, that is called as the cerebral cortex. It forms fold means इसके ऊपर different layers हैं, they are called as the convolutions, and because of these folds the surface area of our brain, it is increased to a large extent. उसकी वजह से हमारे brain का surface area काफ़ी हद तक increase हो चुका हुआ है. सो जो ये वाला पार्ट है, इसका क्या फंक्शन है कि इट रिसीव द सेंसरी इन्फॉर्मेशन. जो भी सेंसरी इन्फॉर्मेशन है हमारे सेंस ऑर्गन से हमारे ब्रेन तक जाती है. सो हमारी बॉडी की जितनी भी इंफॉर्मेशन है, इट गोज टू अवर ब्रेन एंड देन ब्रेन्स ऑर्डर इट. सो किस तरह से पूरा प्रोसेस होता है कि जो भी इंफॉर्मेशन है, लाइक यू टच समथिंग हॉट और कोल्ड, या यू सॉ समथिंग लाइक यू आर रीडिंग अ बुक, सो सबसे पहले वो सेंसरी इन्फॉर्मेशन हमारे ब्रेन तक जाएगी, इस सेरेब्रल कॉर्टेक्स तक पहुंचेगी. इट विल बी प्रोसेस्ड बाय दिस सेरेब्रल कॉर्टेक्स. इट विल स्टोर दिस वट एवर यू आर रीडिंग और वट एवर यू आर वॉचिंग इन द मेमरी फॉर फ्यूचर यूज़, यानी कि यादाश्त बनाने में भी काम आता है. उसके अलावा इफ़ यू वॉन्ट टू टर्न द पेज, नाउ यू हैव फिनिश्ड रीडिंग द पेज, देन दिस पार्ट ऑफ द ब्रेन इट विल डायरेक्ट, इट विल ऑर्डर योर वॉलेंट्री मूवमेंट. वॉलेंट्री मूवमेंट्स क्या हैं कि जो आप सोच के, मीन्स यू आर थिंकिंग दैट यू शुड नाउ टर्न द पेज टू द नेक्स्ट वन. सो ये उन सारे वॉलेंट्री मूवमेंट को ब्रेन कंट्रोल करेगा. एंड यही पोर्शन जो है, जो सेरिब्रम का पोर्शन है, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर दी थिंकिंग प्रोसेस. और थिंकिंग प्रोसेस को अभी तक साइंटिस्ट समझने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से हमारे ब्रेन में एक्टिव होता है, किस तरह से ये पूरा
प्रोसेस चलता है फॉर थिंकिंग, इट इज़ द मोस्ट पुअरली अंडरस्टूड प्रोसेस एंड साइंटिस्ट आर स्टिल वर्किंग ऑन इट. लेकिन ये अंदाज़ा लगाया है कि जो सेरेब्रल कॉर्टेक्स है, इट प्लेज अ मेजर रोल इन द प्रोसेस ऑफ थिंकिंग. You can see over here, these are the folds of the brain and ये ब्रेन मैंने जिस तरह से बताया था कि ये सरफेस एरिया को इंक्रीज़ करने के काम आते हैं, इनको हम सेरिब्रल कॉर्टेक्स का नाम देते हैं. then cerebral cortex, it contain the primary sensory areas जहाँ पे सिग्नल्स आएंगे that are coming from the sensory organs, जैसे कि eyes हैं, ears हैं. The signals will be received here and they will be converted into the subjective impressions, जैसे कि light और sound है. जैसे कि मैंने अभी पिछली स्लाइड्स में बताया था कि थैलमस तक सबसे आते हैं, फिर थैलमस आगे जितने भी हमारे सेंस ऑर्गन से इंफॉर्मेशन जाती है वो थैलमस तक जाएगी, फिर थैलमस आगे रिस्पेक्टेड पोर्शन ऑफ ब्रेन्स को रिस्पेक्टेड पोर्शंस ऑफ ब्रेन को पास ऑन करेगा सारी इंफॉर्मेशन. सो थैलमस इज पासिंग ऑन दिस इंफॉर्मेशन टू सेरिब्रल कॉर्टेक्स, क्योंकि ये सेरिब्रल कॉर्टेक्स की स्पेशलिटी है कि वो आइज़ और ईयर्स से यानी विजुअल और ऑडिटरी जो इन्फॉर्मेशन है उनको प्रोसेस करता है, उनको समझता है हमारा ब्रेन सेरिब्रल कॉर्टेक्स की मदद से. इसीलिए थैलमस जो है वो सारी इन्फॉर्मेशन जो हमारी आइज़ और ईयर्स से आ रही है वो सेरिब्रम की तरफ प्रोसेस करेगी और सेरिब्रल कॉर्टेक्स फिर आगे उसे रिसीव करके और जो भी सारी इन्फॉर्मेशन आ रही है नर्व्स की सूरत में आती है, सिग्नल्स की सूरत में आती है सारी इन्फॉर्मेशन, तो वो उसको बाकायदा मीनिंग देता है हमारा ब्रेन. जो हम देख रहे हैं हमारी आइज़ वो इमेज बना के नहीं भेजती हमारे ब्रेन में, बस कुछ सिग्नल्स भेज देती है. सो हमारा ब्रेन उस सिग्नल को डी कोड करता है, आइज़ कोड की बना के उसको ब्रेन तक सेंड करती है. हमारे ब्रेन का वो रिस्पेक्टेड पोर्शन जिधर तक वो इन्फॉर्मेशन जाती है उसको डी कोड करेगा और फिर समझेगा कि ओवरऑल क्या सुनाई दे रहा है, क्या दिखाई दे रहा है. So here the cerebral cortex, it plays an important role for the information that is coming from the eyes and the ears, and then they are converted into subjective impression. जिस तरह की इंफॉर्मेशन है आपको जो सुनाई दे रहा है फिर वो हमारा ब्रेन उसको उसमें कन्वर्ट करेगा, कोड्स जो आए थे उनको डी कोड करके उन इंफॉर्मेशन को उस तरह से ट्रांसलेट करेगा. सो इन दिस सेरेब्रल कॉर्टेक्स वाइल डूइंग ऑल दिस एक्टिविटी, जो नियर बाय पोर्शंस हैं वो भी दे ऑल्सो इंटरप्रेट दिस इंफॉर्मेशन, वो भी सेरेब्रल कॉर्टेक्स के साथ फंक्शन करके इंटरप्रेट करते हैं सारी इंफॉर्मेशन को. और सेरेब्रल कॉर्टेक्स ना सिर्फ आइज़ और ईयर्स से रिलेटेड है, मतलब उस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस कर रहा है, रिसीव कर रहा है, बल्कि सेरेब्रल कॉर्टेक्स हमारी स्पीच को भी कंट्रोल कर रहा है. इट विल मेक अ स्पीच, इट विल मेक द बॉडी पार्ट्स, द मसल्स ऑफ आवर फेस to response, to work, to make the speech. And it also receives and interpret information that is coming of touch organs, means touch system from all parts of our body. हमारी बॉडी में जो भी टच इंफॉर्मेशन है जो कि सेंस ऑर्गन है हमारा लाइक स्किन, तो वहाँ पे जिस तरह के भी रफ़ कोई चीज़ है, स्मूथ कोई चीज़ है, वो हमारे ब्रेन का सेरिब्रल कॉर्टेक्स ही उसको प्रोसेस करेगा और उसको ट्रांसलेट करता है फॉर आवर होल बॉडी. So you can see over here the background, the picture of the cerebral cortex that is present and how it will function. So this cerebral cortex, we can say it is a center for sending impulse to voluntary muscles and thus helps in controlling movements. Voluntary muscles क्या हैं? हमारे वो सारे मसल जो स्केलेटन के साथ अटैच्ड हैं, जो स्केलेटन को मूव करने के काम आते हैं, फॉर वॉकिंग, फॉर रनिंग, फॉर राइटिंग, फॉर स्पीकिंग. ये सारे मसल जो कि हम पहले हमारा ब्रेन ऑर्डर देगा, वॉलंटरी हैं, हमारे कंट्रोल में है, तो ये हमारा जो सेरेब्रल कॉर्टेक्स है इन सारे वॉलंटरी मसल्स को कंट्रोल करता है. इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारी हर तरह के मूवमेंट को सेरेब्रल कॉर्टेक्स ही कंट्रोल कर रहा है. नॉट ओनली दिस, सेरेब्रल कॉर्टेक्स इज ऑल्सो इन्वॉल्व्ड इन अदर फंक्शंस लाइक इंटेलिजेंस, रीजनिंग एंड जजमेंट. सो जो भी हमारी इंटेलिजेंस है इट इज़ रिलेटेड टू एक्चुअली दीज फोल्ड्स दैट आर प्रेजेंट इन आवर ब्रेन. कहा जाता है कि जिसके ब्रेन में जितने ज़्यादा ये फोल्ड्स होंगे सेरेब्रल कॉर्टेक्स में वो उतना ज़्यादा इंटेलिजेंट होता है बिकॉज ऑफ मोर सरफेस एरिया. एंड नॉट सिर्फ इंटेलिजेंस, रीजनिंग और जजमेंट में भी सेरेब्रल कॉर्टेक्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. सो हेयर इज़ अ पिक्चर. आई एम नॉट गोइंग इनटू डीप इनटू दिस टॉपिक के सेरेब्रल कॉर्टेक्स का कौन सा हिस्सा किस फंक्शन में काम करेगा, कौन सा स्पीच में काम करेगा, कौन सा हेयरिंग में काम को समझने में काम आता है, बट ओवरऑल ये एक
डायग्राम है जो कि बता रही है कि कौन सा हिस्सा है जो कि हैंड स्किल्स के लिए इम्पॉर्टेंट है, जो कि वॉलंटरी मोटर के लिए इम्पॉर्टेंट है, जो आई टर्निंग के लिए, स्पीच के लिए, ये सब मेमोरी पैटर्न्स वगैरह। तो ये सेरेब्रल कॉर्टेक्स भी आगे डिफरेंट पोर्शंस में डिवाइड होता है, जिसके बारे में अभी मैं डिटेल में बात नहीं कर रही हूँ। सो दिस कंट्रोल्स डिफरेंट फंक्शंस बिकॉज इट इज़ अ मेजर पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ आवर ब्रेन। जैसा कि मैंने बताया है कि सेरेब्रल कॉर्टेक्स जो है, सेरेब्रम जो है, इट इज़ डिवाइडेड इनटू 2 हेमिस्फीयर्स। हेमिस्फीयर्स मतलब एक पूरा ओवरऑल अगर स्फीयर आप मान लें, बॉल राउंड ब्रेन पोर्शन है, उसको अगर आप 2 हाफ्स में कन्वर्ट कर दें, हेमी मतलब हाफ ऑफ द स्फीयर, हाफ ऑफ द ब्रेन। सो हमारे ब्रेन का जो लेफ्ट हेमिस्फीयर है, इट कंट्रोल्स द राइट साइड ऑफ आवर बॉडी, एंड हमारी ब्रेन का जो राइट हेमिस्फीयर है, इट कंट्रोल्स द लेफ्ट साइड ऑफ आवर बॉडी। एंड अक्सर आपने सुना होगा कि कहा जाता है जैसे साइंटिफिक टर्म्स में कि राइट ब्रेन है ज़्यादा एक्टिव है किसी पर्सन का, या फिर लेफ़्ट ब्रेन ज़्यादा एक्टिव है। सो ये दोनों जो हेमिस्फीयर्स हैं, एक्चुअली इनके काम भी, फंक्शन भी थोड़े से ज़्यादा डिफरेंट हैं एक दूसरे से। जैसे कि अगर हम कहते हैं कि एक बंदा राइट ब्रेन्ड है या लेफ़्ट ब्रेन्ड है, उसके फंक्शन दूसरे से डिफरेंट होते हैं। एक साइड जो है ब्रेन की, वो विजुअल इंफॉर्मेशन को ज़्यादा अच्छे तरीके से प्रोसेस करती है, वो बंदे को शक्लें ज़्यादा अच्छे तरीके से याद रहती हैं, जबकि दूसरे साइड जो है ब्रेन की, इट हेल्प्स इन बेटर मूवमेंट, या इट हेल्प्स इन बेटर लिसनिंग स्किल्स। सो ये दोनों जो हैं, ये सेपरेट स्किल्स प्रोवाइड करती हैं। अब ये डिपेंड करता है कि एक पर्सन के कौन सा हेमिस्फीयर ज़्यादा एक्टिव है, ज़्यादा डोमिनेंट है, तो उसमें उस तरह की उस हेमिस्फीयर से रिलेटेड स्किल्स पाई जाती हैं। ये बात खत्म यहाँ तक हुई है फोर ब्रेन की, दैट वाज द फर्स्ट पोर्शन ऑफ आवर ब्रेन। द नेक्स्ट पोर्शन इज़ द मिड ब्रेन। मिड ब्रेन की अगर हम बात करें, इट इज़ मच रिड्यूस्ड इन ह्यूमन बींग्स। इंसानों में इसके जो स्ट्रक्चर है, बहुत टाइनी स्ट्रक्चर है एज़ कम्पेयर टू अदर पोर्शंस ऑफ द ब्रेन। It is very reduced in structure, and it contains the auditory relay center, and this center, it will control the reflex movement of our eyes. हमारी eyes में जो reflex movement है, जो left से right हम देखते हैं, it is controlled by the midbrain. You can see in the picture this green color, it is showing the midbrain. You can see how tiny it is. Then there is the reticular formation. It is a relay center of our midbrain that is connecting the forebrain with the hindbrain. And this relay center, it is very important in screening the input information. यानी हमारे ब्रेन में जो भी इंफॉर्मेशन पहले एंटर होती है, जैसा कि मैंने बताया था, पहले थैलेमस तक जाती है, उसके बाद आगे सेरेब्रम तक। तो थैलेमस से पहले भी जो भी इंफॉर्मेशन हमारे ब्रेन में एंटर हो रही है, तो कह लें कि मिड ब्रेन इज़ द एंट्री पॉइंट। तो हर ब्रेन को पहले मिड ब्रेन से हर इंफॉर्मेशन को पहले मिड ब्रेन से होकर जाना पड़ता है, और मिड ब्रेन सिर्फ ज़रूरी इंफॉर्मेशन को ही पास करेगा हायर ब्रेन सेंटर्स तक, और जो गैर ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है, जो कि इम्पॉर्टेंट नहीं है, उसको वहीं पे स्क्रीन आउट कर देता है, वहीं पे भेज देता है वापस। फॉर एग्जांपल, यू आर गोइंग टू समवेयर, और आप काफ़ी चीज़ें बीच में देखते भी हैं, और देखते हुए भी आप नोटिस नहीं करते, जिन चीज़ों को याद नहीं रखते, वो आपके ब्रेन के हायर ऑर्डर तक नहीं जाती हैं, हायर ब्रेन एरियाज़ तक। वो मिड ब्रेन ही उनको वापस भेज देता है, स्क्रीन आउट कर देता है। सो यू कैन नॉट रिमेंबर ईच एंड एवरी टाइनी डिटेल ऑफ ईच एंड एवरी थिंग while you are going somewhere, or while you are sitting in a room. So you can see over here this reticular formation that is written over here in the left side. This is the reticular formation. It will connect the hind brain with the midbrain, with the forebrain, sorry. Then the next portion of our brain is hindbrain. It have 3 different structures: medulla, pons, and cerebellum. You can see them in the background picture. Cerebellum is the largest structure in the hindbrain. Then there is pons, and there is medulla, that is a tiny structure. We will start talking about medulla. It controls several different automatic functions. बहुत सारे automatic functions हैं हमारी body में हो रहे हैं, जो कि involuntary हैं, हमारे control में नहीं है, like breathing, हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर, स्वेलिंग। ये सारे प्रोसेस जो हैं, आप सो रहे हैं, जाग रहे हैं, ये तब भी चल रहे होते हैं। यू आर नॉट कंट्रोलिंग देम, दे आर ऑटोमेटिक, दे आर डायरेक्टली कंट्रोल्ड बाय आवर बॉडी। वी डोंट नीड, बाय आवर ब्रेन, वी डोंट नीड टू थिंक अबाउट दीज फंक्शंस। सो ये ऑटोमेटिक फंक्शंस हैं जो कि मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन का मेड्यूला ऑब्लोंगेटा कंट्रोल कर रहा है। यू कैन सी दिस हाईलाइटेड पोर्शन ऑफ द ब्रेन, दैट इज़ मेड्यूला ऑब्लोंगेटा। और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, this highlighted portion is medulla oblongata, that is in orange yellow color.
देन द नेक्स्ट पोर्शन इज पॉन्स. अगर हम पॉन्स की बात करते हैं, व्हाट डज इट डू? It has certain neurons that are located above medulla. कुछ pons is located above medulla. तो उसके जो कुछ न्यूरॉन्स वगैरह हैं जो कि मेड्यूला के ऊपर लोकेटेड हैं, दे इन्फ्लुएंस द ट्रांजिशन बिटवीन स्लीप एंड वेकफुलनेस. यानी हमारे सोने और जागने की जो ट्रांजिशन है, सोते हुए आपको अपने इर्द गिर्द के इन्वायरमेंट के बारे में नहीं पता. व्हेन यू आर इन वेकफुलनेस यू नो अबाउट योर सराउंडिंग्स, अबाउट योर इन्वायरमेंट. सो ये जो ट्रांजिशन है, जब हमारा ब्रेन एक्टिव नहीं है कि अपने इन्वायरमेंट को, अपने सराउंडिंग को देख सके या फिर उनको समझ सके, तो दिस ट्रांजिशन बिटवीन द स्लीप एंड वेकफुलनेस, इट इज़ कंट्रोल्ड बाय द पॉन्स. एंड इट ऑल्सो defines the rate and pattern of our breathing. कि हम like during sleep we take long breaths, deep breaths, while in wakefulness we take short breaths that are not much deep. So pons is controlling these different types of activities of our body. You can see this highlighted portion of pons. Right below pons there is medulla, and this portion is the pons, that is a portion of hindbrain. देन द नेक्स्ट पोर्शन इज सेरिबेलम. सेरिबेलम को अगर हम बात करें तो ये हाइंड ब्रेन का सबसे लार्जेस्ट पोर्शन है, एंड इट कोऑर्डिनेट्स द मूवमेंट इन द बॉडी, मूवमेंट्स ऑफ द बॉडी. इट हेल्प्स इन गाइडिंग स्मूथ एंड एक्यूरेट मोशन. मीन्स व्हेन यू आर मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, व्हेन यू आर वॉकिंग, तो सेरिबेलम जो है ये ध्यान में रखता है, इस बात पे फंक्शन करता है कि व्हेन यू आर वॉकिंग योर मूवमेंट शुड बी स्मूथ. यू आर नॉट वॉकिंग विद बोल्ट्स एंड शॉक्स. आप झटके से नहीं चलते बल्कि आप स्मूथली वॉक कर रहे हैं. सो सेरिबेलम इज कंट्रोलिंग ऑल दिस. नॉट ओनली दिस, सेरिबेलम ऑल्सो कंट्रोल्स ओवर बॉडी पोजिशन. मीन्स वाइल यू आर स्टैंडिंग, आप सीधे तरीके से खड़े हैं. वाइल यू आर ऑन सम हिली एरिया, आप हॉरिजॉन्टल किसी एरिया पे प्रेजेंट हैं, तो वहाँ पे किस तरह से आपकी बॉडी पोजीशन मेंटेन रहेगी कि आप गिर ना जाएं, आपकी बॉडी इम्बैलेंस ना हो जाए. ये सब कुछ सेरिबेलम कंट्रोल कर रहा होता है. So you can see this yellowish portion of the brain. This is the cerebellum. Cerebellum, it is also involved in learning and memory storage for behaviors. Means what type of behavior should we show. और इस तरह के लर्निंग बिहेवियर और मेमोरी स्टोरेज जो है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सेरिबेलम इनको स्टोर करने में. सेरिबेलम इट इज़ बेस्ट डेवलप्ड इन बर्ड्स में बहुत अच्छे तरीके से डेवलप्ड है. वाई? बिकॉज दे आर इंगेज्ड इन द कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी ऑफ फ्लाइट. उन्होंने जो पूरा प्रोसेस करना है फ्लाइट के लिए, हाउ दे विल फ्लाई, हाउ देयर मसल शुड कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स, व्हाट देयर पोजीशन ऑफ बॉडी शुड बी, हाउ दे शुड मूव, ये सारा कुछ सेरिबेलम वहाँ पे कंट्रोल कर रहा है. दैट इज़ वाई, बिकॉज ऑफ दैट complex activity, cerebellum is best developed in birds. You can see over here the highlighted area of the brain, that is the cerebellum. यहाँ तक हुआ ब्रेन के तीनों पार्ट्स फिनिश, जिसमें हमने फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन के बारे में डिस्कस किया है. नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द सेकंड पोर्शन ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, दैट इज़ द स्पाइनल कॉर्ड. सो व्हेन वी टॉक अबाउट स्पाइनल कॉर्ड, मेड्यूला ऑब्लोंगेटा का जब आपने स्ट्रक्चर देखा था, इट नैरोज डाउन. मेड्यूला ऑब्लोंगेटा का फर्दर आप नीचे ला के देखें तो इट इज़ नैरोइंग डाउन इनटू एन ओवल शेप्ड हॉलो सिलेंडर, and that cylinder it is turning medulla oblongata फर्दर नीचे लाने तक, एक्सटेंड करने तक, it is converted into the spinal cord, and this spinal cord is running through the vertebral column. Means vertebral column हमारी जो रीढ़ की हड्डी है, you can see over here also in between that vertebral column spinal cord is running, and you can see how vertebral column is protecting this whole structure of spinal cord. And when we talk about spinal cord, it is made up of very large number of neurons, और इन न्यूरॉन्स के अंदर सेल फाइबर्स और जो बॉडीज़ हैं दे आर अरेंज्ड इन डेफिनेट पैटर्न, जिसकी वजह से अगर हम मेड्यूला स्पाइनल कॉर्ड को क्रॉस सेक्शन को देखें तो आपको एक डिफरेंट पैटर्न शो होगा इसके अंदर, क्योंकि इसके अंदर जो सेल फाइबर्स हैं और बॉडीज़ हैं बहुत स्पेसिफिक तरीके से अरेंज्ड हैं. सो व्हेन वी लुक एट द क्रॉस सेक्शन ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड, इट विल शो अ बटरफ्लाई लाइक स्ट्रक्चर. जो इनर बटरफ्लाई है, it is shaped gray matter. It is gray in color. You can see over here above the picture. That is not much clear over here. So we will go to the next. जो आउटर पोर्शन है वो वाइट कलर का मैटर है, जबकि जो इनर पोर्शन है उस बटरफ्लाई स्ट्रक्चर का वो ग्रे कलर का पोर्शन है. एंड जो इनर पोर्शन है ग्रे कलर का, इट कंटेन्स द सेंट्रल कैनाल
वो जो मिड में कैनाल है दैट इज़ प्रेजेंट इन द ग्रे मैटर, एंड द आउटर पोर्शन इट इज़ कंपोज्ड ऑफ द वाइट मैटर। जो ग्रे मैटर अगर उसके अंदर बात करें तो न्यूरॉन्स की तमाम सेल बॉडीज़, नॉन माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स और ट्रैक्ट्स। नॉन माइलिनेटेड यानी कि वो न्यूरॉन्स जिनके ऊपर कवरिंग नहीं है सेल्स की, उनको हम नॉन माइलिनेटेड कहते हैं। ये ग्रे मैटर के अंदर प्रेजेंट है। अगर हम वाइट मैटर में देखें वहाँ पे माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स या ट्रैक्ट्स प्रेजेंट होते हैं। सो यू कैन सी हियर इज़ द क्रॉस सेक्शन, द आउटर पोर्शन दैट इज़ लाइटर इन कलर, ये वाइट मैटर है जिसके अंदर माइलिनेटेड न्यूरॉन्स प्रेजेंट होंगे, और जो इनर पोर्शन है दैट इज़ ग्रे मैटर। You can see it is written, it is labeled at the left side, and it has non-myelinated nerve fibers, it has cell bodies of the neurons, और इसी के अंदर यहाँ पे सेंटर में सेंट्रल कैनाल है that is passing throughout the spinal cord. So this is a cross section of spinal cord, means when you are looking at the spinal cord from the above. And spinal cord, it is a center for great many reflexes. Many reflex actions are happening in our body. For example, when you suddenly touch something very cold or touch something that is very hot, you suddenly pull your hand back without thinking about it, and later you realize that I touched something hot or something cold after few seconds. So these are the reflex actions, and these are the reflexes. This is controlled by the spinal cord. For example, when you are touching something that is very hot, you think your that message from the finger, it will first go to the spinal cord, and spinal cord will give message to your hand to pull your hand back. अगर ब्रेन तक जाने का इंतज़ार करें फिर ब्रेन दोबारा मैसेज भेजे, इतनी देर में फिंगर बर्न हो जाए या इंजरी ज़्यादा हो जाए. सो दैट इज़ वाई देर आर सम रिफ्लेक्सेस दैट आर स्टोर्ड फॉर स्पाइनल कॉर्ड. यानी कि कोई भी सडन एक्शन लेना, वो स्पाइनल कॉर्ड पहले एक्शन लेगी और बाद में ब्रेन को मैसेज भेजेगी कि इस तरह से मैसेज आया था और ये एक्शन लेने को कहा गया है. सो इट सर्व्स एज अ पाथवे फॉर द कंडक्शन ऑफ इम्पल्स. यानी जो भी इम्पल्सेस हैं हमारी बॉडी से हमारे ब्रेन तक जाती हैं, या फिर हमारे ब्रेन से दोबारा हमारी बॉडी तक जो भी मैसेजेस जाते हैं, ये सारा कुछ स्पाइनल कॉर्ड से होते हुए गुजरते हैं. तो स्पाइनल कॉर्ड हैज़ आगे फर्दर डिफरेंट नर्व्स दैट आर रीचिंग टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी दैट आर सेंडिंग द मैसेज. सो स्पाइनल कॉर्ड इज़ अ पाथवे जिसके अंदर तमाम मैसेजेस बॉडी से ब्रेन तक और ब्रेन से दोबारा बॉडी तक आते हैं. So this was my lecture about the central nervous system. उम्मीद है आपको इस लेक्चर की समझ आई हो. उम्मीद है आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगी हो. See you in my next video. Till then, Allah Hafiz.